عزیزو و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا نواں حصہ آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے پیش کیا جا چکا ہے۔ حضرات، آج سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے، ان کا سندیش بھول چکے تھے، مورتیوں کی پوجا میں لگ گئے تھے۔ لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا۔ انہوں نے شرک اور مورتی پوجا کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی شکشا یاد دلائی۔ مکہ والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم کے بیٹوں، اللہ کا گھر پاک کرو۔ کعبہ میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں ہٹا دو۔ وہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں۔ ان کو پوجنے سے فائدہ کیا ہے؟ تم ان کی پریکرما کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیوں، اس دین کے بدلے کوئی اور دین تلاش کرو جو سمجھ میں بھی آتا ہو۔ بھائیوں، تورات اور انجیل میں ایک نبی کا الیکھ ہوا ہے، وہ نبی تمہارے یہاں ہی ہوگا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی، پادری، کاہن سب یہی کہتے ہیں۔ اس لیے تم شرک اور بت پرستی سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس کا انتظار کرو۔ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی نہاد رہیں گے۔ اس سمے یہ بالکل ایک نئی آواز تھی۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عمر بن نفیل کے بیٹے زید ہیں، نوفل کے بیٹے ورقہ ہیں، حارث کے بیٹے عثمان ہیں اور جہش کے بیٹے عبیدہ ہیں۔ یہ سب اپنی قوم کے بزرگ اور بڑے لوگ تھے۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ہر ویکتی جانتا تھا یہ چاروں آدمی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے انویائی ہیں۔ انہوں نے شراب اور جوئے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا۔ مورتی پوجا سے انہیں سخت نفرت۔ بے سہارا لڑکیوں کے لیے دیا کی ہی دیا ہے۔ اگر سن لیتے کہ کوئی آدمی اپنی زندہ معصوم بچی کو زمین میں گاڑنے جا رہا ہے کیول دردتا اور نردھنتا کے ڈر سے یا اسے اپنے لیے کلنک سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے کسی طرح حاصل کر لیتے اور خود اس کی پرورش کرتے۔ جوان ہونے پر اس کے باپ اگر چاہیں تو پھر واپس بھی کر دیتے تھے۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن قریش کو بھلا یہ کب سہن ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نئی اور اجنبی آواز بلند کریں؟ یہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے دین کی کھلم کھلا آلوچنا کی جائے اور اسے غلط بتلایا جائے، ان کی مورتیوں کا کھنڈن کیا جائے اور ان مورتیوں کی بے بسی کی چرچا کر کے دلوں کو ان سے پھیرا جائے؟ اسی طرح کی پوجا پاٹ اور بھیڑ چڑھاؤں میں ان کی عمریں بیت گئی تھیں۔ یہی ان کے اپاس اور معبود تھے جن کو وہ باپ دادا کے زمانے سے پوجتے چلے آئے تھے۔ کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا، ستیہ کی اس آواز کو تچھ سمجھتے ہوئے کان بند کر لیے۔ پھر اسی پر بس نہ چلا، بہتوں نے گالیاں بھی دیں، طعنوں کے تیر بھی چلائے، ہنسی بھی اڑائی اور جتنا ہو سکا ان پر حملے کیے۔ اسی طرح ایک زمانہ بیت گیا۔ کوئی تو گھر بار چھوڑ کر باہر چلا گیا اور کوئی عیسائی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کیول زید رہ گئے۔ وہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر روتے اور کہتے، اے خدا، اگر میں جانتا تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو اسی کو اپناتا، مگر مجھے نہیں معلوم۔ پھر
बे इख्तियार सजदे में गिर पड़ते। चारों बुजुर्गों ने अपने अकीदे का ऐलान कर दिया। उन्होंने जो समझा साफ साफ बयान कर दिया। इस पर कुरैश ने खूब मजाक उड़ाया। वही लोग जो अब तक खूबियों में बेमिसाल थे, शराफत और इंसानियत के आदर्श रूप थे, उन्हीं में अब कीड़े अब उन्हीं उन्हीं में अब कीड़े ही कीड़े दिखाई देने लगे, ऐब ही ऐब नज़र आने लगे। उन्हें क्या पता था एक जवान और है जो उनकी आंखों का तारा और दिल का सहारा है, जो उनको जान से भी प्यारा है, वो भी उन्हीं का हम ख्याल है, उन्हीं के दीन का ध्वजावाहक है। हाँ, उसने अभी ऐलान नहीं किया है, अभी वो खुद ही तन्हाई में पड़ा सोच रहा है और वो सच की खोज में गुम है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का से 6 मील पर हीरा नामक एक पहाड़ है। उसमें एक गुफ़ा है जो गारे हीरा के नाम से मशहूर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गुफ़ा में चले जाते, कई कई दिन और कई कई रातें वहीं रहते। जिस सत्य के लिए आप बेकरार थे उसको खोजते, उसको पाने की कोशिश करते, जिस ज्ञान की अभिलाषा की उसकी तलाश करते। रमज़ान का महीना आता तो बिल्कुल यकसू हो जाते। यहाँ ना इंसानों का शोरगुल होता, न दुनिया के हंगामे, बिल्कुल तन्हाई और खामोशी का माहौल होता। वही सोच विचार में लगे रहते। जो कुछ रूखा सूखा पास होता उसी पर बसर करते। कभी घर आकर खुद ही ले जाते और कभी घर वाले पहुंचा देते। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन और ये थी आपकी रातें। विचारों के समुद्र में गोते लगाते, मन की गहराइयों से पूछते, जो सत्य मालूम होता शौक़ के हाथों से पकड़ लेते और जो असत्य मालूम होता उसे दिल दिमाग से निकाल देते। ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है, यह एक सवाल था जिसका जवाब पाने के लिए आप बड़े बेचैन थे। साल पर साल बीतते रहे और आपका यही हाल रहा। रोज़ गुफ़ा में जाते, जब रमज़ान आता तो बिल्कुल यकसू हो जाते और दिन रात वहीं रहते। फिर जब मक्का लौटते तो सबसे पहले काबा जाते और उसका तवाफ़ करते। फिर बाल बच्चों में आते। बीवी खदीजा बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पूछती, कहिए मेरे प्रिय, क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज हैं, आप खैरियत से तो हैं? फरमाते, हाँ खुदा का शुक्र है, उसकी बड़ी मेहरबानी है, सब ठीक है। बच्चे आपको घेर लेते, जो बहुत छोटे होते वे लिपट जाते और जो बड़े होते वे बातें करते। बड़े भोलेपन से पूछते, आप कहाँ थे अब्बा जान, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप उनको गोद में उठा लेते, प्यार करते, मोहब्बत से सिर पर हाथ फेरते, उनके साथ मीठी मीठी बातें करते और फरमाते, अच्छा कभी तुम भी मेरे साथ चलना। आप कुछ समय बाल बच्चों में गुजारते, उनकी प्यारी प्यारी बातों में खुश होते, उनसे हंस बोल कर सुकून महसूस करते, उनकी मासूम अदाओं से खुश होते, फिर हीरा की गुफ़ा में लौट जाते। लेकिन ये मुबारक घड़ियाँ और खुशी के दिन जल्द ही ख़त्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। ज़ख्म पर ज़ख्म लगते रहे लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया, बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। आपकी बेटियां ही रह गईं जो 4 थीं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला। ज़ैनब बड़ी हुई तो उनकी शादी अबुल आस से कर दी। यह बीवी खदीजा के भांजे और रबी के बेटे थे। फिर रुकैया और उम्मे कुलसुम की शादी उतबा और उतैबा से कर दी। ये दोनों अबू लहब के बेटे थे। आपके साथ केवल फ़ातिमा रह गईं। प्यारी और नन्ही फ़ातिमा, आप बेटों से तो महरूम हो गए परंतु किस्मत से 2 बच्चे मिल गए। अब वे दोनों आपके बेटे थे और आप उनके बाप। बीबी खदीजा के एक भतीजे थे, हुकैम बिन हिज़ाम। एक रोज़ बीबी खदीजा उनसे मिलने गईं, एक गुलाम भी साथ लाईं।
वह बहुत खूबसूरत था, लाड प्यार में पला था। आपने फरमाया, ये कैसा लड़का है खदीजा? खदीजा, हुकैम जो मेरे भतीजे हैं शाम सीरिया से कुछ गुलाम लाए थे, एक मुझको दे दिया। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम इसके चेहरे पर शराफत की चमक है, अक्लमंदी और सूझबूझ की अलामतें भी हैं। खदीजा ने कहा, कहा जाता है कि ये बहुत ही लाड प्यार में पला हुआ है। इत्तेफाक से बनी कैन के हाथ लग गया, उन्होंने हिबाशा के बाज़ार में बेच दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम को बहुत प्यार और मोहब्बत से देखा, फिर पूछा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? गुलाम ने जवाब दिया, मेरा नाम ज़ैद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस वंश से ताल्लुक़ रखते हो? गुलाम ने कहा, मेरे बाप का नाम हारिस है, दादा का नाम शुरहबील है और परदादा का नाम कअब है और मेरी माँ का नाम सौदा है और वे सालिबा की बेटी हैं और तय कबीले से आई हैं। आपने बीबी खदीजा से फरमाया, क्या अब यह गुलाम मेरा नहीं है? खदीजा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये आप ही का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी समय गुलाम को आज़ाद कर दिया और अपना बेटा बना लिया। फिर गुलाम के माँ बाप के पास एक आदमी भेजा कि उनको इत्मीनान हो जाए कि उनका बेटा खैरियत से है। खबर मिलते ही ज़ैद के बाप और चचा मक्का आए। उन्होंने आपसे दरख्वास्त की, हमसे मुँह मांगे दाम ले लीजिए, परंतु बेटे को छोड़ दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक सूरत है। वे बोले, वह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं उसे बुलाता हूँ और उसकी खुशी पर छोड़ता हूँ। अगर वो साथ जाना पसंद करे तो आप लोग उसे ले जाएं, मुझे दाम देने की ज़रूरत नहीं। और अगर उसने मेरे साथ रहना पसंद किया तो फिर मैं भी उसको नहीं छोड़ता, जो मुझे नहीं छोड़ता। वे बोले, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। आपने ज़ैद को बुलाया और फरमाया, देखो ये दो मेहमान आए हैं, क्या इन्हें पहचानते हो? ज़ैद ने कहा, हाँ हाँ, ये तो मेरे बाप और चचा हैं। फरमाया, तुम्हारी इच्छा है, चाहो तो इनके साथ घर चले जाओ और दिल चाहे तो मेरे साथ रह जाओ। वह लड़का फ़ौरन आपसे लिपट गया, बोला, नहीं नहीं, मैं तो आप ही के साथ रहूँगा। ज़ैद का बाप हारिस गुस्से से लाल हो गया और कड़क कर बोला, ज़ैद, माँ बाप और कौम व वतन को छोड़कर तू ग़ुलामी पर राज़ी है? ज़ैद ने कहा, इन्होंने मुझे ग़ुलाम नहीं बनाया है, इनमें ऐसी खूबियाँ हैं कि मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद का हाथ पकड़ा लेकर कुरैश के पास आए और फरमाया, आप लोग गवाह रहें, ये मेरा बेटा है, ये मेरा वारिस होगा और मैं इसका वारिस। हारिस ने यह मंज़र देखा तो खुशी से उछल पड़ा और बेटे को आप ही के पास छोड़कर चला गया। थोड़े ही समय बाद चचेरे भाई अली भी आपकी सरपरस्ती में आ गए। हाँ, वही अली जो अबू तालिब के बेटे हैं। इस तरह ज़ैद और अली दोनों साथ रहने लगे और आपके लाड प्यार ने ज़िंदगी की सारी कड़वाहट भूल गए। अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में क्यों आए? बात यह थी कि अबू तालिब के यहाँ बाल बच्चे बहुत थे, परंतु माल की कमी थी। बड़ी मुसीबतों से गुजारा करते, न जाने किन किन परेशानियों से दिन काटते। इस पर गज़ब ये हुआ कि अरब में सख्त अकाल पड़ा। ऐसा अकाल जो अपनी मिसाल आप था। अबू तालिब की तो बात ही क्या, बड़े बड़े रईसों की कमर टूट गई और बड़े बड़े मालदार कंगाल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दूसरे चचा अब्बास थे, ये बनी हाशिम के रईसों में थे। आपने उनसे कहा, हम दोनों चचा अबू तालिब के 2 लड़कों को अपनी परवरिश में ले लें, इससे उनका कुछ बोझ हल्का होगा और परेशानियां कम हो जाएंगी। अब्बास ने ये राय पसंद की। दोनों अबू तालिब के पास आए, उनके सामने अपनी बात रखी। अबू तालिब ने कहा, अल्लाह तुम दोनों का भला करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इनमें से जिन 2 बच्चों को चाहो ले जाओ। अब्बास ने जाफ़र को ले लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
علی کو۔ اس وقت سے آپ علی کے پیارے باپ بن گئے اور علی آپ کے چہیتے بیٹے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، 10واں حصہ آج تک ختم ہوا اور 11واں حصہ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں کل پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔